my dear students. Today I'll discuss some topics from chapter 3, current electricity. Okay. See the first topic, resistors in series. In this topic we have to discuss when three resistances R1, R2, R3 are connected, they are acting as a single resistance, and that single resistance is known as equivalent resistance. How equivalent resistance related with R1, R2, R3, that expression we have to derive. Okay, this on the circuit diagram, resistor in series. Here we connect R1, R2, R3 are in series. Across this series combination we connect a battery of EMF E. These are in series because same current is flowing across each resistances. Okay, the potential drop across R1 is V1, across R2 V2, across R3 V3. Okay, now E equal to, energy is always constant, then E equal to how much? V1 plus V2 plus V3. Okay, we consider this in the equation 1. Now we have to bring the term R1, R2, R3. How? For that one we have to use Ohm's law. Okay, from Ohm's law, V1 equal to I R1, ठीक है ना, V2 equal to I, because across each resistance its current is same, and V3 equal to I R3. Now putting the values of V1, V2 and V3 in equation 1, putting values of V1, V2 and V3 in equation 1. Okay, we get E equal to I R1 plus I R2 plus I R3. So which term is common? I is common, so take I common, then it will become I into R1 plus R2 plus R3. You consider this in the equation 2. Okay, is it okay? Now imagine ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके क्या हो गया? सिंगल रेजिस्टेंस हो गया. ठीक है, ये सिंगल रेजिस्टेंस का नाम दिया RS. दिस RS रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू द सीरीज कॉम्बिनेशन. S stand for series. Okay, so then E equal to, E is the total voltage. Total voltage equal to क्या होगा? Total current into total resistance. Okay, तो RS is the, if RS is equivalent resistance to the series combination of resistances R1, R2 and R3, then E equal to total current into total resistance. ठीक है ना, you consider this in the equation 3. ठीक है, now compare करो equation 2 and 3. From equation 2 and 3 we get E का जगह में क्या होगा? इक्वेशन 2 और 3 को देखने से E का जगह में क्या होगा? IRS. IRS इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, सो I कैंसल. So this on the expression of resistors in series. तो जब भी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज. ठीक है, सो यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला.
Okay. Next I'll discuss another topic, register in parallel. Okay. Next see register in parallel. Okay. So in this topic we will discuss when the registers are connected in parallel, these registers are acting as a single resistance, and that single resistance is called equivalent resistance. Our aim is that we have to show the relation how equivalent resistance related with R1, R2, R3. That expression we have to derive. Okay. तो देखिए यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3. ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, बिकॉज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस EMF इज सेम. Across this parallel combination we connect a battery of EMF E. Okay, current is flowing I. It will be split up into 3 parts. R1 में कितना जा रहा है, I1, R2 में I2, R3 में I3. ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके क्या हो जाएगा, एक्टिंग एज ए सिंगल रेजिस्टेंस. उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का साथ R1, R2, R3 का क्या रिलेशन है वो हम लोग को देखना है. ठीक है, तो करंट इज कंजर्व, तो क्या होगा, I इक्वल टू चार्ज इज कंजर्व, तो करंट भी कंजर्व होगा. तो I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते. हम लोग को क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए. तो रेजिस्टेंस को लाना पड़ेगा फ्रॉम ओम्स लॉ. ठीक है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई R1. सब में EMF क्या सेम होगा. I2 इक्वल टू क्या होगा, E बाई R2. I3 क्या होगा, E बाई R3. Putting the value of I1, I2, I3 in equation 1. So therefore equation 1 becomes क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 का जगह में क्या होगा, E बाई R1. I2 का जगह में E बाई R2. I3 का जगह में क्या होगा, E बाई R3. कौन, ठीक है, यहाँ पर E है, E को कॉमन ले लेते हैं. सो इट विल बिकम E 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. ठीक है, सो वी कंसिडर दिस ऑन द इक्वेशन 2. ठीक है, वी कंसिडर दिस ऑन द इक्वेशन 2. अभी देखिए ये तीनों मिलके सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा. इमेजिन कीजिए ये तीनों मिलके सिंगल हो गया. एंड सिंगल रेजिस्टेंस का नाम दिया RP. एंड RP स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. P स्टैंड फॉर पैरेलल. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ RP इज equivalent resistance to the parallel combination of resistance R1, R2 and R3, then I क्या टोटल करंट है, टोटल करंट इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस. एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RP. ओके, सो इक्वेशन 2 और 3 को कंपैरिजन कीजिए. I का जगह में क्या हो जाएगा, E बाई RP. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3. तो I का जगह में क्या होगा, E बाई RP इक्वल टू क्या होगा, E इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. ठीक है, तो I का जगह में डाल देते E बाई RP इक्वल टू क्या होगा, E
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और ई क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो 1/RP इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो दिस ऑन द expression of register in parallel. So when the register connected in parallel, its value is decreasing, okay, reduce. So you remember this formula. Next I'll discuss one question on resistance, okay. See the question. If a wire is stretched to n time of its original length, then what will be its new resistance? एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कुछ है, उसका लेंथ को 10 टाइम्स लंबा कर दिया, करने से न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम लोग को निकालना है, उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो चलिए कैसे करते हैं, उसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज R इक्वल टू रो L/A। तो रेजिस्टेंस का साथ लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या हम लोग ने पहले पढ़ा है, ठीक है ना, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए, लेट R0 बी द ओरिजिनल resistance and L be its original length, okay. Now R नॉट इक्वल टू क्या होगा, रो L/A। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। नाउ अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का लेंथ लेके काम है, वी हैव टू वर्क विथ लेंथ ओनली। So rest all term we have to remove. How? देखिए, रो सेम मटेरियल है, रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो देखिए एल स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख दिया, AL। AL का मतलब क्या है, वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कंजर्व। एक वायर को खींचने से उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम। रो क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। AL क्या है, वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, एज ए होल दिस कांस्टेंट को हम लोग ने लिख दिया R0 इक्वल टू K L स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। K इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी क्या करना है, वायर को खींच के कितना टाइम्स बनाना है, n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो when wire stretch to n times of its original length, then new resistance is new, ठीक है। रेजिस्टेंस का साथ लेंथ का रिलेशन क्या हम लोग जानते हैं, इसको रेफरेंस रख के इसको निकाल देंगे। तो क्या होगा, के लेंथ कितना है, n टाइम्स कर दिया ओरिजिनल लेंथ का, तो क्या होगा, NL स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R न्यू K
एल स्क्वायर एन स्क्वायर और आर न्यू के एल स्क्वायर क्या है आर नॉट एन स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो के एल स्क्वायर का जगह में क्या लिखा है आर नॉट क्या ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया है। न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू एन स्क्वायर मतलब कितना टाइम्स हम लोग ने वायर को खींचा है, 2 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम खींचने से एन का जगह में 4 लिखेंगे। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक वायर को खींचने से न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू एन स्क्वायर। ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।